بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور ثنا کے بعد جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، ہر جمعۃ المبارک کو ہم محفل درس قرآن، درس حدیث اور محفل ذکر کا انعقاد کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست کے لیے میں آپ حضرات کے لیے جو آیت لے کر آیا ہوں اس کے ضمن میں ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورۃ التکاثر کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم پھر لتسألن ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے یومئذ قیامت کے دن عن النعیم نعمتوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں انسان سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور اس آیت کی تشریح کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر 5 باتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان 5 باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود انسان سے سوال کرے گا۔ میں یوں کہوں گا کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو قبر میں فرشتے کرتے ہیں، من رب کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ قبر کے سوالات ہیں۔ لیکن قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں 5 طرح کے سوال ایسے ہیں جو اللہ براہ راست اپنے سامنے کھڑے کر کے بندے سے پوچھے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ کیا؟ عن عمرک فیما افناہ، بندے سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے۔ میں آپ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی نعمت سانسیں استعمال کر رہے ہیں، یہ سانسیں جسم کے ساتھ، روح جسم کے ساتھ جڑتی ہے، سانسیں آ جا رہی ہیں، اس کا نام ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں انسان سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تیرا جسم تھا، جسم کے اندر روح تھی، آ جا رہی تھی، میں نے تجھے موقع عطا کیا، اے انسان بتا تو نے میری ذات کے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے دن میں 5 دفعہ اپنے دربار میں بلایا، زندگی بھی دی، طاقت بھی دی، قدم بھی دیے، سوچ بھی دی، کان بھی دیے، آواز سن رہا تھا، ذہن دیا، آواز کو سمجھ رہا تھا، تجھے پتہ چل رہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ ساری باتیں تیرے کان میں پڑ رہی تھی۔ زندگی کے ہوتے ہوئے کیا آیا؟ تو میری بارگاہ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو آج کی نشست کا پہلا سبق یہ ہے، ہمیں اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم اس دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کریں گے۔ اور میں اس حدیث کو جب بھی بیان کرتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں دنیا داری میں آپ اتر کے اس مثال کو یوں سمجھیں، کوئی بھی کسی بڑے مرتبے کے اندر کے اوپر بیٹھا ہوئے شخص ہو، ایس ایچ او، ڈی ایس پی او، آئی جی او، یہ دنیا کے جتنے بھی مراتب ہیں آپ ان میں دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ ڈی ایس پی کسی کو بلا لے اپنے آفس میں، طلبی ہو جائے، جتنے بھی شریف طرح کے لوگ ہیں وہ فوراً کمزور ہو جاتے ہیں، ایک دم ڈر جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے، یار ڈی ایس پی نے بلایا، کہیں کسی نے جھوٹی ایف آئی آر تو نہیں کٹا دی، کہیں میں کسی جھوٹ کے اندر مجھے انوالو کر کے میرے خلاف کیس تو نہیں بنا دیا۔ عدالت کا جج انسان کو بلا لے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ وہ سوال ہے جو کائنات کا بادشاہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے بندے سے پوچھے گا، کیا بتا بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، بندے سے اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اے بندے بتا جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ جوانی اللہ نے دی ہوئی ہے، جوانی کو اس کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 7 طرح کے بندے ایسے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا کرے گا، اس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، ایک ٹھنڈا سایہ ہوگا اللہ کی عرش کا، باقی ہر طرف گرمی ہی گرمی، انسان پسینے میں شرابور،
تو रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 तरह के बंदों को अपने अर्श का साया अता करेगा। हुजूर ने फरमाया उन 7 तरह के बंदों में एक वो जवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारी। अल्लाह की तरफ से बुलावा आया मस्जिद में नजर आया, अल्लाह की तरफ से बुलावा आया जुमे के लिए जुमे में नजर आया, अल्लाह की तरफ से बुलाया गया ईद की नमाज के लिए ईद की नमाज के लिए नजर आया। अल्लाह ने हुक्म दिया हुकूकुल इबाद पूरे करो, बंदों के हुकूक पूरे करता रहा। अल्लाह ने रोजे फर्ज के रोजे अता किए, अल्लाह की बातें मानता रहा, अल्लाह ने जिन कामों से रोका उनसे रुकता रहा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे जवान से कहेगा, ऐ जवान तूने अपनी जिंदगी मेरे अहकामात के मुताबिक गुजारी थी, आज किसी और चीज का साया नहीं है सिवाय मेरे अर्श के साए के, आज मैं तुझे अपने अर्श का साया अता करता हूँ। वो फरमाते हैं अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता करेगा, वो जवान जिसने जवानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी। और आप वो जुमला शेख सादी का या किसी बुजुर्ग का है फारसी जुबान में, दर जवानी तौबा करदन शेवा बेअम्बरी, के जवानी की हालत में तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आना, ये अल्लाह के नबियों का शेवा है। अल्लाह के नबी जवानी की हालत में अल्लाह को याद करते हैं। वो बेलोल दादा को किसी ने देखा ना, बात ज़हन में आ गई, बेलोल फकीर को किसी ने देखा कि वो एक दिन बाजार में खड़ा है, रो रहा है, बाजार में खड़ा रो रहा है, और कुछ ही दिन के बाद किसी ने देखा कब्रिस्तान में खड़ा होकर रो रहा है। तो बंदे ने पूछा कि भाई बेलोल बड़ी अजीब बात है, कुछ दिन पहले देखा बाजार की शोर गुल में तू रो रहा था, आज कब्रिस्तान की तन्हाइयों में रो रहा है, इसमें राज क्या है? तो बेलोल दाना ने कहा कि कल बाजार में खड़ा होकर बंदों और अल्लाह की सुलह करा रहा था, अल्लाह मान रहा था, बंदे नहीं मान रहे थे, इसलिए रो रहा था कि कितने नादान है, अल्लाह मान रहा है इस वक्त, ये मान ही नहीं रहे। तो कहा इसलिए रो रहा था, और आज कब्रिस्तान में खड़ा होकर इसलिए रो रहा हूँ, आज भी सुलह करा रहा हूँ बंदों की और अल्लाह की, लेकिन वक्त गुजर चुका है, वक्त कट चुका है, आज बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा, तो इसलिए रो रहा हूँ। वहां पे अल्लाह मान रहा था, बंदे नहीं मान रहे थे बाजार में, आज बंदे मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बेलोल हमारी सुलह करा दे, अल्लाह को मना दे, लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। तो मैं यूं कहूँगा कि जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे का वक्त भी गुजर जाता है, इंसान कब्र की तन्हाइयों में जाके सो जाता है, तो उसके बाद इंसान से वक्त खत्म हो जाता है। आज देखिए ना, कब्रिस्तान में लेटे हुए को कोई भी नहीं कहता उठो नमाज पढ़ो, आज उनके पास भले क़यामत तक वक्त है, लेकिन उन्हें नमाज का हुक्म नहीं दिया जा रहा। नमाज का हुक्म मुझे आपको दिया जा रहा है, अल्लाह की इबादत का हुक्म मुझे और आपको दिया जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। अगला सवाल करेगा वो ये होगा, बंदे बता माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया? माल कहाँ से कमाया और कहाँ से खर्च किया? क्या हलाल के जरिए से कमाया और हलाल के कामों पे खर्च किया, या हराम कमा के हराम पे खर्च किया? याद रखें, हलाल कमा के हराम के ऊपर खर्च करना भी बुरा है, हराम कमा के हलाल पे खर्च करो या हराम पे खर्च करो, दोनों सूरतों में मना है, दोनों सूरतों में बुरा है। कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा कि हराम की कमाई कर करके जनाब की बहुत बड़ी कोठी बना ले, उसके ऊपर लिखा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, यानी ये अल्लाह की खुद ही नाफरमानी करने के बाद जब घर बना ले तो उसके ऊपर माशाअल्लाह ये जुमला लिख दे कि अल्लाह का फजल है, और बंदे को खुद पता होता है ये जो मेरी कमाई है ये हलाल की नहीं है। अगर पता है हलाल की कमाई नहीं है, फिर ये जुमला लिखा तो ये कलमा कुफ्र कर दिया कि अल्लाह ताला का फजल हराम को कह रहा है, ये बुरी बात है। तो मैं यूं कहूँगा कि हलाल कमाना ये बंदे मोमिन की शान है, हलाल कमाएं, थोड़ा कमाएं, अपनी औलाद को मैं कहता हूँ थोड़ा खिला लें, लेकिन हलाल खिलाएं, इसकी तासीर आगे जाके बड़ी भयानक होती है। अगर हराम लुकमा औलाद के खमीर के अंदर उतर गया तो कल जब जवान होगी औलाद तो आप इस बात की उम्मीद ये ना रखें कि वो फरमाबरदार होगी, वो नाफरमान हो जाएगी। मैंने अपने इन कानों से बेटे को माँ को गालियां देते हुए सुना है, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से बेटे को बाप के साथ उलझते हुए देखा है। वजह क्या है? वजह शायद कहीं यही है कि औलाद की खमीर के अंदर हलाल लुकमा नहीं उतरा। अगर हलाल लुकमा उतरा होता तो वो औलाद कभी भी नाफरमान ना होती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पूछेगा इंसान से, बता माल कहाँ से कमाया था, हलाल या हराम?
माल कहाँ पे खर्च किया था, अल्लाह की ताबेदारी में या अल्लाह की नाफरमानी में, तो उस दिन से पहले हमें अपना मुहासबा कर लेना चाहिए। और आखिरी जुमला इस हदीस पाक का, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म के बारे में, वान इल्मिन माज़ा अमिल बिही, इल्म के बारे में सवाल होगा, हाँ भाई बताओ उसके मुताबिक अमल किया था या नहीं। मैं आप आए दिन उलमा की नशिस्तों में बैठते हैं, हम वहाँ से इल्म हासिल करते हैं, हमसे पूछा जाएगा बताओ भाई तुम्हें वो फलाने आलिम ने कहा था सूद नहीं खाना, क्यों खाया? वो फलाने बंदे ने कहा था किसी का नाहक माल उठाकर नहीं खाना, क्यों खाया था? वो फलाने आलिम ने तुम्हें बताया था कि जनाब फलाने की चोरी करके माल नहीं खाना, फलाने का डाका नहीं डालना, फलाने का माल हथियाना नहीं है, फलाने को जनाब 10 रुपए की चीज 500 की बता के लूट के माल नहीं खाना, क्यों खाया था? तो लिहाजा इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हें इतना इल्म तो था, हलाल क्या है हराम क्या है। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज कर दूं कि इंसान के अंदर का मुफ्ती इंसान को बता देता है, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंसान का ज़मीर जब इंसान को गलत काम करने लगता है, गलत कदम उठाने लगता है, फौरन आकर फतवा जारी कर देता है, और भाई साहब रुक जाओ, और जनाब ये गलत कर रहे हो, ये फलाने का माल नाहक खा रहे हो। तो अगर उसकी तरफ तवज्जो न की तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे दिल के अंदर मैंने दस्तक दी थी, तेरे ज़मीर ने तुझे कहा था कि ये काम गलत है। तो लिहाजा मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि जो इल्म आप हासिल करते हैं, जो बात आप पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल करना अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाएं। वैसे भी सियाने कहते हैं कि अच्छी बातें दीवारों के ऊपर भी लिखी हुई होती हैं, दीवारों के ऊपर भी आप जैन शहरों में बड़ी बड़ी अच्छी बातें लोगों ने लिखी हुई होती हैं। आप स्कूलों के अंदर चले जाएं, कॉलेजेस के अंदर चले जाएं, वहाँ पे उर्दू इंग्लिश हर जुबान के अंदर जनाब उन्होंने अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं। लेकिन इल्म जो होता है दीवार के ऊपर लिखा हुआ हो, दीवार को हुक्म नहीं है उस पर अमल का, इंसान अमल करता है। तो इंसान में और दीवार में फर्क होता है कि भाई दीवार ने अपने ऊपर अच्छी बात लिखी लेकिन उसने अमल नहीं करना होता। तो हम ईंटों की बनी वो दीवार न बने, बल्कि हम इंसान बने, अपने अमल के अंदर बात को उतारें, अपने किरदार के अंदर बात को उतारें, अल्लाह की बात को माने, अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उनसे रोकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।